Hello, friends. My name is Vishal Shrivastava, and I welcome you to this inspiring session of Building Bricks, Volume 6. Before this, we have had 5 volumes, and I thank you for your overwhelming response and encouragement. Today, we are going to start with this new volume, and I hope and I believe that you will enjoy it and you will find it beneficial for you. Today's session talks about be your own inspiration. हाँ दोस्तों, be your own inspiration. खुद ही को हौसलामंद कीजिए और खुद ही उस हौसला को बढ़ाने का सूत्र बनिए अपने जीवन में. Before I go ahead, let me also thank Reverend Sister Marin, CMC, who is the respected principal of Mount Carmel School, BAGHMUGALIA, Bhopal. It was her wish that such talks should be done on a regular basis for the students and for their families. So as you all know that I am a teacher at Mount Carmel School, BAGHMUGALIA, Bhopal, and I am making this humble effort to bring to your life some wonderful thoughts. So let us go ahead and enjoy the session. So today, this session takes us on a tour of introspection as well, of building bricks to be placed in our own life. तो आज हम अपने जीवन में स्वयं झांकेंगे और अपने जीवन को एक नए रूप से पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने जीवन में सक्सेसफुल बन सकें, विजय पा सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें, प्रेम शांति को अनुभव कर सकें अपने जीवन में. So be your own inspiration. You are your own inspiration. You have to believe in this. You are your own solution to the problems that you face. You are your own motivation to go ahead and challenge challenges and win over them. Find ways of finding success in your life. Push yourself because no one else is going to do it for you. So my dear friends, don't wait for someone else to do things for you. If you yourself are not going to inspire yourself, why do you think someone else can inspire you? If you yourself do not want to take your life towards success, towards realizing your own dreams, why do you believe that someone else will do that for you? My dear friends, I used to tell my son to explain in simple ways कि दो तरह के लोग होते हैं. जब आप एक ट्रेन को देखते हैं तो आप समझते हैं, एक वो होते हैं जो इंजन होते हैं, जो ना केवल खुद को चलाते हैं बल्कि दूसरों को भी चलाने में सक्षम होते हैं. इंजन ना केवल खुद चलता है बल्कि गाड़ी के डब्बों को भी चलाता है. और अगर हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं है तो हम एक गाड़ी के डब्बे की तरह होंगे.
दूसरे हमें चलाएंगे, क्योंकि हम स्वयं को खुद नहीं चलाते। तो गाड़ी के डब्बे को इंजन अटैच कर देंगे, इंजन जहां उसको लेके जाएगा वहां डब्बा जाएगा, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता। तो आपको क्या बनना है? इंजन बनना है कि डब्बा बनना है? इंजन बनना है ना, अपने जीवन को स्वयं आगे लेके चलना है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू? बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। हौसलामंद रहिए, विश्वास कीजिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। अपने अंदर वो सक्षमता की उम्मीद जगाइए कि आप अगर कोशिश करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, अपने सपनों को साकार करने के प्रति कार्यान्वित रहेंगे, तो आप सफलता का मीठा स्वाद जरूर चखेंगे। एक अच्छे इंसान बनने के लिए कोशिश करेंगे तो एक दिन कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपसे कहेगा, हमने आप में एक अच्छे इंसान को देखा है। तो इंस्पायर योरसेल्फ, अपने जीवन को इस प्रकार से जिए, ऐसे विचारों को मन में पनपने दें, ऐसे वचनों को कहें, ऐसे कार्यों में अपने जीवन का निवेश करें, अपने जीवन को इस प्रकार के लक्ष्य दें कि जब आप अपने बारे में स्वयं सोचें तो आप स्वयं खुद से ही अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने वचनों से, अपने लक्ष्य से, अपनी कोशिशों से आप खुद ही प्रेरणा पाने लगें। बी अ सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन। खुद ही अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा और कोशिश हम करेंगे। So my dear friends, literally if we want to believe that we want to know what is inspiration, so we know the process of being mentally stimulated to do or feel something, especially to do something creative, is inspiration. So you can see that when we talk about inspiration, एक छोटा सा शब्द लगता है इंस्पिरेशन, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया, ऊर्जा की दुनिया है इसके अंदर, उल्लास की दुनिया है इसके अंदर, मार्गदर्शन की दुनिया है इसके अंदर, और सफलता की कुंजी है इसके अंदर। सो क्रिएटिविटी है, इनिशिएटिवनेस है, इनोवेशन है, इमेजिनेशन है, ओरिजिनलिटी है और इंडिविजुअलिटी है, और वो सब कुछ है जिससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है और मार्गदर्शन मिलता है। A sudden brilliant or timely idea, bright idea, brilliant idea, timely thought, revelation and more. You are what you deep driving desires is. तो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वही आपका निर्माण करती हैं और वही आप हैं। As your desire is so is your will. जैसी आपकी इच्छाएं होंगी वैसे ही आप अपने जीवन में डिसीजंस लेंगे और प्रेरित रहेंगे आप उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए।
As your will is, so is your deeds. और वैसे ही आपके कर्म होंगे. And as your deed is, so is your destiny. और जैसे आपके कार्य होंगे, वैसा ही आपके भविष्य का निर्माण होगा. तो इंस्पिरेशन को हृदय में संजो के रखना बहुत अच्छा है. एक अच्छी इंस्पिरेशन आपके अंदर वो अच्छे भाव पैदा करता है, जिससे आप कुछ अच्छे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा या कोशिश करते हैं. और फिर आपके कार्यों का भी मार्गदर्शन उसी इच्छाओं के द्वारा होता है. और उन कार्यों को जब आप करते हैं तो आपका जीवन एक दिशा में बढ़ता है और आप अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं. इंस्पिरेशन लीड्स टू मोटिवेशन. Motivation leads to progress, and progress leads to success, my dear friends. So, do you want success? Do you want progress? Do you want a source of motivation to work in your life? Then install inspiration in your system. And for that, there are so many wonderful sources that you can look at. But simply being inspired by them is not enough. The next stage has to be that you yourself will start building yourself to be a source of inspiration for yourself. That is when things start happening in your life. So, when we continue this journey of inspiration, there are so many people we can look up to. It can be in any area that you want to develop. You will find there have been great legends in every area that you can look up to. And we all know the great APG Abdul Kalam, the 11th President of India, the rocket man of India, a great source of inspiration, a person who lived as such a great source of inspiration that he not just inspired himself, but the entire world. With the way he thinks, with the way he speaks, the way he lived his life, his actions, his achievements, and the way he bounced back from failures, and the way he shared his experiences with people, every moment became a source of inspiration in his life and in the life of people who know him. We all fail in life, my dear friends. We might not like to admit it. But success and failure are actually the building blocks and the building bricks of our life. If you turn your face from your failure, you've turned your face from a major portion of your life. So failures are actually the areas of learning for us. If you fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. That's what a great inspiration. Actually, my dear friends, it was further explained as first attempt in learning is fail. Now, when I read this wonderful thought,
by the great legend, great personality. It gives me strength from within, especially in areas when I consider myself as I have failed. It helps me to bounce back from failure or to synonym failure as a learning activity. तो जब हम जीवन में हार जाते हैं तो उस हार को हम एक सबक के रूप में लेते हैं ताकि उससे सीखकर हम अपने जीवन का सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकें, अपने जीवन में वो बदलाव ला सकें जिसके कारण हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो failures are considered as stepping stones to success. Those who are filled with the inspiration that failure is a step of learning, then failure will never hold your feet for moving forward. It will never have a drastic effect on you. It will not dip you in depression and lower down your esteem. But with failure, it will have an incremental effect on in your life where you will add to the experience of life with the help of the failure. Remember, my dear friends, जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप अपने जीवन में झांक कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत बार फेल होते हैं और उन बहुत बार फेल होने के बाद ही हम सक्सेसफुल होते हैं। एक छोटा नन्हा बच्चा खड़ा होने से पहले, दौड़ने से पहले घुटने पे चलता है और उस समय धीरे धीरे चीजों को पकड़ के खड़ा होता है और न जाने कितनी बार वो गिरता है, लेकिन वो अपने हौसले को छोड़ता नहीं है। छोटा बच्चा जब तक वो खड़ा ना हो जाए, चलने न लगे, दौड़ने न लगे। यही हौसला हमें अपने जीवन में पूरे जीवन बनाए रखना चाहिए कि डोंट गिव अप, लर्न कंटिन्यूअसली फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Find your own best way of living your life that will be beneficial for you, that will help you to avoid trouble, that will help you to be a source of inspiration for others and for yourself. In our course of living our life, especially when we are growing, जब हम बड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करें, फाइट करें और घबराएं नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज कम इन आवर लाइफ। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स से घबराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, प्रॉब्लम्स को देखते ही वे छिपते हैं। पर जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं और उस प्रॉब्लम को फाइट करते हुए है सक्सेसफुल होते हैं, हर्डल्स ऑफ लाइफ के ऊपर विजय पाते हैं। सो वी शुड बी नॉट अ पर्सन हु सेज आई हैव प्रॉब्लम्स, but we should inspire ourselves to say, I fight problems. I don't take shelter in the rain like all birds. ये मेरा नेचर नहीं है।
बल्कि मैंने अपना नेचर बनाया है to avoid the rain by flying above the clouds. What a beautiful thought. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन में बहुत पोटेंशियल डेवलप कर लिया है। आपके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन इस एजुकेशन का आप कैसे प्रयोग करेंगे? This will decide a lot many things in your life for you. But yes, you should feel happy and you should always strive forward to educate yourself. Now, education does not mean that you pack a heavy bag, put it on your back and go to a school. Education means deep within you are inspired to acquire knowledge and to use it for the betterment. Then you are actually enlightened with the brightness and the illuminance of education. Your personality will then be illuminant with the knowledge that you have. So don't just avoid yourself from your studies, but understand your studies are going to help you to be a great person and to achieve so many dreams for you in your life. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So my dear friends, never stop learning because life never stops teaching. जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपकी circumstances हैं, situation है, सीखना कभी मत छोड़िए. Never stop learning because life never stops teaching. कुछ ना कुछ सीखते रहिए. जरूरी नहीं है कि हमेशा जो किताबों में है वही सीखिए. कुछ अच्छी चीजें सीखिए, कुछ टैलेंट्स डेवलप कीजिए अपने अंदर, कुछ स्पोर्ट्स डेवलप कीजिए. घर में जो काम मम्मी पापा करते हैं उन कामों को करना सीखिए, लेकिन सीखिए. इन्वेस्ट योर लाइफ इन लर्निंग continuously. Something. Always. You're learning. So be in a continuous process of learning because life never stops teaching. Okay? So I'm sure we are going to be learners throughout our life. Learning gives creativity. And creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. So do you want to be great? Then be inspired towards learning. Be inspired to open your mind for creativity. Be inspired that creativity will fill your minds with positive, good, and creative thoughts. And make sure that this knowledge, with your inspiration, will definitely make you great. So if you fail, my dear friends, never give up because fail means first attempt is learning. End is not the end. In fact, end means
एफर्ट नेवर डाइज। तो कभी मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, है ना। अपने अंदर ऐसा इंस्पिरेशन रखिए, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए कि हारना और जीतना जीवन का भाग है, लेकिन वहीं पर जीवन का अंत नहीं है। हमें वहां से अपने आप को हौसला मंद करना है और अपने जीवन को फिर से अपनी प्रेरणाओं को मन में रखकर, उनसे शक्ति पाकर फिर से हमें कोशिश करनी है और जीतना है। If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Yes, let's be positive. So if you are filled with inspiration, if you are your inspiration, failure cannot stop you. Someone's no, किसी का रोकना आपको रोक नहीं सकता. No means next opportunity. Fill yourself with positivity. Fill yourself with the inspiration that fills your life with positivity, that gives you the enthusiasm to keep on with the good work, even in circumstances that are not very encouraging. Life and time are the world's best teacher. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. So, my dear friends, a life without inspiration will not value time. A time without inspiration will not value life. So, life and time are the world's best teacher. आपका जीवन और समय आपके सबसे अच्छे शिक्षक हैं। यही आपको बहुत सी बातें सिखाएंगे। तो वैल्यू योर लाइफ एंड वैल्यू द टाइम दैट यू हैव. इन्वेस्ट योर लाइफ एंड टाइम इन गुडनेस, in harmony, in enhancing peace within you and outside you, in learning, in constructing yourself, in helping others, in inspiring yourself and being an inspiration for others. You have to dream before the dream comes true. और आपने ये भी कहा है कि एक सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आप पूरा करने की कोशिश में ऐसे लग जाते हैं कि आपको सोने नहीं देता. That dream will not let you sleep until it is realized by you. So you have to dream before the dream comes true. तो सपने देखिए, अपने जीवन में उस ऊर्जा को रखिए जो आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. तो be ready to bear with the hardships involved to realize your dream. Be ready to invest the efforts to win over the hurdles of life so that you reach your target, your goal of success. Don't look for shortcuts and easy methods that will misguide you. So if there is a requirement where you have to put in an effort, be ready for it. आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहते हैं अपने अच्छे नंबरों के साथ, तो सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलेगा.
आपको पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत करने के लिए तैयार रहें, कोशिश कीजिए। आपके माता पिता आपको अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, आपको अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आपको एक खुशहाल जीवन जीना देना चाहते हैं, तो क्या वो सिर्फ मन में सोच के ये आपको मिल जाएगा? वो अपने मन में तो सिर्फ ये बात नहीं सोचते, बल्कि इस बात को पूरा करने के लिए, सच करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पापा काम पर जाते हैं, हो सकता है मम्मी भी काम पर जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए सुबह-सुबह खाना बनाता है ना? कोई आपके कपड़े तैयार कर रहा है, कोई आपकी एजुकेशन के लिए आपको बुक्स दे रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में एडमिट करा रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं पढ़ाई में। हर तरीके से आपका ख्याल रखने की कोशिश करने में वो मेहनत करते हैं आपके पेरेंट्स। यानी कि बिना मेहनत किए कुछ भी अचीव करने का सोचना एक ऐसे सपने के बारे में है जो जो जब हम नींद से उठेंगे वो सपना खो जाएगा। तो सपना वो होता है जो हम नींद में, जागने में हमेशा याद रखें और उसकी तरफ मेहनत करें। Efforts have to be invested to achieve something, है ना? तो अपनी पढ़ाई ठीक से कीजिए, अपना एक्सरसाइज ठीक से कीजिए, आपके माता पिता ने जो आपको कार्य बताया उस कार्यों को ठीक से कीजिए, आपके टीचर ने जो गाइड किया है उसको कीजिए और आपका हृदय जो कहता है कि अपने जीवन में आप कुछ बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एफर्ट बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लिव द वे यू वांट टू बिकम। One beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. So choose people having beautiful heart rather than faces. Be inspired to build beauty within rather than to make up from outside to make you look beautiful. So we should focus on not just only to look beautiful, but we should focus to be beautiful, to feel beautiful, to make others feel beautiful in our presence. ऐसे व्यक्तित्व को बनना है हमें कि जो खूबसूरत हो, खूबसूरत बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्तित्व नहीं। We should not work hard to make ourselves look beautiful, but we should work hard to make ourselves be beautiful. Yes? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रेरणादायक किताबें हैं। These are wonderful books, my dear friends. I'm sure these books are available for you to read. You can look. You can always ask for these books in your school library also. In case they don't have it, I'm sure they will get it from you for you when you will keep on asking in the school library that these books are required. So these are fantastic books and a lot of information about these books is on the internet as well. तो सोर्स अपनी इंस्पिरेशन को बिल्ड करने के लिए आप बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स यहाँ से ले सकते हैं जो प्यारी किताबें लिखी हैं श्री अब्दुल कलाम जी ने। यस, और ना केवल इन्होंने बल्कि इतने सारे पर्सनालिटीज एंड वंडरफुल पीपल इन द लाइफ इन दिस वर्ल्ड हैव रिटन सो मेनी बुक्स, and you can, if you're a good book reader, you can go ahead and read the books, and if you like to surf on the internet, utilize that time to build your inspiration by getting the goodness and the source of inspiration, the various inspirational quotes that you are getting on the internet from the wonderful people, and you will one day find that you have built yourself as a source of inspiration for yourself, and that should be your aim, that I will become a source of inspiration for myself. मैं खुद ही अपने आप के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनूंगा और ऐसा बनूंगा कि दूसरे भी मुझसे इंस्पायर होंगे। यस, सो may the God of hope fill you with all joy and peace in faith, so that you overflow with hope by the power of the Holy Spirit. ये रोमन्स में लिखा हुआ है 15:13 में कि हम चाहते हैं कि भगवान पर हमारा भरोसा रहे, जो हमारे जीवन को प्रेम से भर दे और उम्मीद से भर दे, शांति से भर दे, ठीक है, और हमारे अंदर वो शक्ति
परमात्मा के द्वारा आए, जिससे हम हमेशा उम्मीद की डोर से बंधे रहें। उम्मीद की डोर से बंधे रहने वाले ही लोग कोशिश करते रहते हैं, अपने जीवन में हताश नहीं होते और अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। For I know the plan I have from you, declares the Lord. परमेश्वर जानता है जिसने आपको बनाया है कि उसने आपके लिए क्या योजना बना रखी है। A plans to prosper, a plan to prosper you and not to harm you. तो परमेश्वर की योजना आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, आपको किसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहता है आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, प्रॉस्पर हों, है ना। Plans to give you hope and a future. तो देखिए, it is so important to understand God's plan for us. God's plan for us is a plan of prosperity. God's plan for us to give us hope and a fantastic future. We only need to adhere to God's plan. Okay? Associate yourself and your life with God and its plan and make God a beautiful builder of fantastic source of inspiration in your life. He gives power to the weak and strength to the powerless. So अगर ये आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि मुझे जो मेरी कमजोरियों में शक्ति परमात्मा देता है, तो जब भी आप अपनी कमजोरियों को फेस करेंगे, आप उस कमजोरी से घुटने नहीं टेकेंगे उसके सामने, बल्कि आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका विश्वास रहेगा कि मेरी कमजोरियों में मेरा पिता परमात्मा, मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति दे रहा है। मेरी जिन जिन एरियाज में मैं कमजोर हूँ, उन एरियाज को मैं अपने परमात्मा को समर्पित करता हूँ, और वो मेरा परमात्मा मुझे उन एरिया में शक्तिमान बनाएगा, है ना। और फिर मैं अपने जीवन में कुछ पा सकता हूँ। तो अपनी सरेंडर योर वीकनेसेस, योर एरियाज दैट आर giving you, that are that where you are not strong, to the Lord. Surrender your weakness to the Lord. He will provide you with strength and power. Lord is assuring you, भगवान का एक प्रॉमिस है आपके लिए, I am with you and will watch over you wherever you go. तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमात्मा आपके साथ है। Then I will instruct you and teach you in the way you should go. तो आपको आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको सिखाऊंगा, परमात्मा कहता है, और आपको सही राह की ओर प्रेरित करूंगा। तो हमें अपने हृदय को परमात्मा का आसन बनाना चाहिए, अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके आगे चलना चाहिए, बिकॉज द बेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड the heart will be a vessel of inspiration only when you are blessed by God, and that blessing of God comes to you only when you open yourself with surrender to God's beautiful works in your life. ठीक है, तो इसीलिए अपने हृदय को, अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कीजिए, और परमात्मा आपके हृदय में वो उम्मीद जगा देगा, वो शक्ति दे देगा, वो शांति देगा और वो मार्गदर्शन देगा, जिससे आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप एक ग्रेट पर्सन बन सकते हैं। When times are good, be happy, but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. तो बेकार ही अपने फ्यूचर के बारे में आप पहले से ही अनुमान मत लगाइए, बल्कि अपने जीवन में कोशिश करते रहिए। Instead of just thinking about what the forecast will be about my life, it is better you build your life, you involve in building your life rather than relying just on any forecast. Okay, now every weakness you have in an opportunity for God to show His strength in your life. So, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. तो अपनी जनरली हमारी जो
जो हम लोग इंस्पिरेशन को लैक करते हैं वो इसलिए दैट वी फेस आवर वीकनेसेस, एंड वंस वी फेस आवर वीकनेसेस इट टेक्स अवे ऑल द होप फ्रॉम अस. Then we start brooding about our weakness, and then we live in that darkness, and we are not able to find our path of success, and we stop investing in our dreams, because even before we are achieving anything we think that the fate of all the work we will do is going to be ending at failure because of our weakness. But then, my dear friends, everyone has some weakness in this world, okay? And the strength in that weakness is provided by God. So his strength in your life, yes, this is a beautiful inspiration. If you have this in your mind, his strength means God's strength in your life. ठीक है, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ या कोई सब्जेक्ट मुझे ठीक से आ नहीं रहा है, तो मैं परमात्मा का नाम लेकर उस कार्य को करूँगा. मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं उसमें फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, या मैं इसमें कभी मैं पास हो ही नहीं सकता, इसमें कभी मुझे सफलता प्राप्त ही नहीं होगी. इन बुरे और इन विचारों को जो मुझे कमज़ोर करते हैं, मैं इन्हें त्याग दूंगा. बल्कि मैं क्या करूंगा, जिन एरियाज़ में मैं कमज़ोर हूँ और मुझे उन एरियाज़ में कुछ सफलता प्राप्त करनी है, मैं उन एरियाज़ में भगवान से प्रार्थना करके अपनी कोशिशों को करता रहूँगा. जब मैं कोशिश करता रहूँगा और परमात्मा को अपनी शक्ति मानूंगा, तब एक दिन जिस एरिया में मैं हारा था, जिस एरिया में मैं फेल हुआ था, उसी एरिया में मैं एक दिन वेरी सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ और हो जाऊँगा. यस, I will be successful in the areas where I am weak as well. Why? Because His grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness, His strength in your life. आइए हम एक और पर्सनालिटी से मिलते हैं जो खुद भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपने लिए भी थे और सारे संसार के लिए भी. स्वामी विवेकानंद. The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourself. Yes, खुद पर विश्वास रखिए. जब आप अपने आप के बारे में स्मरण करते हैं, सोचते हैं, तो क्या आपका मन इंस्पिरेशन से भरता है? भरना चाहिए. अपने जीवन को इस प्रकार से जिए कि आप स्वयं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने. That should be your aim now, from now on, okay? So विवेकानंद जी हमसे कहते हैं, the greatest religion is to be true to your own nature. True to your own nature, and have faith in yourself. Have faith in yourself. Yes, we are what our thoughts have made us. जो हमारे विचार हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम बनेंगे. सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक. इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए. बुरे विचारों को मन में आने मत दीजिए. अगर आ भी जाएं तो उनको निकाल दीजिए. सिर्फ अच्छे विचारों को अपने मन में आने दीजिए, पनपने दीजिए, बढ़ने दीजिए. Words are secondary. Thoughts live. They travel far. मुंह से शब्द जो निकले वो उतना आपके जीवन में ज़्यादा देर तक हो सकता ना रहें, लेकिन जो विचार रहते हैं वो आपके जीवन में काफ़ी समय तक रहेंगे. इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को मन में रखिए. मन को जो है अच्छे विचार से आप इंस्पायर रखिए. Keep your mind inspired with beautiful and fantastic thoughts, and don't let the negative thoughts deter your will or to destroy or disturb the sanctity and the pureness of your mind. तो इसीलिए बुरे विचारों से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपने मन में रखें और मन में आने दें, है ना. और बुरे विचार अगर मन में आए उन्हें उसी समय त्याग दें. ठीक है, अच्छे विचार मन में आए तो उन्हें संजो के रखें, उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि वे जीवन का एक ऐसा सूत्र बनेंगे जो आपको अपने जीवन में खुद को इंस्पायर करने के लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. टेक रिस्क इन योर लाइफ. इफ यू विन
you may lead. If you lose, you may guide. तो अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए पीछे ना हटें। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पहले से मत सोचिए अरे मैं हार जाऊंगा, अरे ये तो बड़ा टफ एग्जाम है, मैं इसको अचीव नहीं कर सकता हूँ। कोशिश कीजिए, कोशिश करना चाहिए, हाँ कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे तो आप यू विल लीड, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप हार भी गए तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इस खुद को और दूसरों को समझा पाएंगे कि किन बातों से हम हार गए, किन बातों को हमें और करना चाहिए जिसके कारण हारेंगे नहीं। So there are two kinds of information that you get. The information is related to what helps you to win and what you can avoid so that you win. क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम हार से बचें और जीत जाएं। सो हार के डर से हम कार्य ना करें, ये तो गलत है। So be inspired to challenge your challenges. Be inspired to think beyond the fear of failure. Because if you win, you may lead. If you lose, you may guide. What a wonderful thought. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हो सकता है कभी कभी आप छोटे छोटे बैटल्स को हार जाएं, आप गिर जाएं, आप थक जाएं। उस समय पे हमें स्वामी विवेकानंद जी की इन बातों को याद रखना है। अराइज, उठ खड़े हो, अवेक, जाग जाओ, फिर से हौसलामंद हो जाओ और रुको मत। डोंट क्विट, रुकना नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लें। Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Dare to be free, dare to go as far as your thoughts lead, and dare to carry that out in your life. So, there is encouragement that will be in your own life when you inspire yourself. You will be a source of encouragement for yourself. And if you want to live a good life, you have to have some levels of courage in you. As Vivekanand ji is telling us, dare to be free. Dare to go as far as your thoughts lead you. And dare to carry that out in your life. तो अपने जीवन में आगे बढ़ते समय हमें अपने जीवन में हमेशा हौसला रखना चाहिए, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, परमात्मा को अपनी कमजोरियों में आमंत्रित करें और परमात्मा आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएगा और आपके हृदय में साहस भर देगा। वही साहस यहाँ विवेकानंद जी हमसे कह रहे हैं, साहस के साथ अपने आप को स्वतंत्र महसूस करो, साहस के साथ अपने विचारों को कार्यान्वित कीजिए और साहस के साथ अपने जीवन को जिए। Have that inspiration in your life. Be your own source of encouragement. Heart is a very good fertilizer. Anything we plant, love, hate, fear, hope, revenge, jealousy, surely grows and bears fruit. We have to decide what to harvest. हमारे दिल में हम जो भी बोएंगे वही हम अपने जीवन में काटेंगे। जैसे एक किसान अगर अपने खेत में गेहूं के बीज बोता है तो बाद में जब फसल पकती है तो वो गेहूं की फसल काटता है ना। तो ऐसे ही ये विवेकानंद जी हमें बता रहे हैं कि हमारे दिल में हम जैसे विचारों को रखेंगे वैसे ही हमारे जीवन में हम फल पाएंगे।
तो आप कैसे फल पाना चाहते हैं अपने जीवन में? क्या सोचा है आपने कि आप चाहते हैं लोग आपको बुरा व्यक्ति बोले, कि आप चाहते हैं लोग आपको अच्छा व्यक्ति बोले, कि जब आप अपने आप के बारे में सोचें आपको शर्म आए, या जब आप अपने बारे में सोचें आपको खुद पर गर्व हो? दिस इज द हार्वेस्ट, सो यू हैव टू डिसाइड द हार्वेस्ट। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, और जो भी आपको अपने जीवन में बनना है, बस वैसे ही विचार, वैसे ही संस्कार आपको अपने हृदय में भरना है। तो जो भी आप अपने हृदय में भरेंगे, जो भी विचार, जो भी इंस्पिरेशन आप अपने हार्ट में रखेंगे, whatever inspiration you have in your heart, that will make your life accordingly. That will build your life accordingly. So what you want as a harvest in your life, that you have to sow in your heart. So I'm sure you don't want to sow in your heart hatred or revenge or jealousy or fear, but I'm sure you would definitely like to sow in your heart love, hope, peace. Yes. So ध्यान रखिए आप अपने हृदय में कैसे विचारों को पनपने देते हैं, क्योंकि वही आपके जीवन का निर्माण करेंगे। So heart is a very good fertilizer. Anything we plant, love, hate, fear, hope, revenge, jealousy, surely grows and bears fruit. We have to decide what to harvest. स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। हम लोग इन किताबों को हमको भी जैसे पढ़ना चाहिए। इन केस यू आर अ गुड रीडर, आप इन किताबों को रख सकते हैं अपने पास, या आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में भी आप इन किताबों को बोल सकते हैं रखने के लिए, ताकि स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद और उनके ज्ञान के द्वारा आपके भी जीवन में एक इंस्पिरेशन डेवलप हो। बहुत सारी किताबें हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, और इंटरनेट के भी ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, अगर आप सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जी's life, because he became a great source of inspiration for himself. Yes. हमारा जो स्कूल है माउंट कार्मल, और अपने देश और विदेश में बहुत सारे कार्मल के नाम से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनके फाउंडर हैं सेंट क्रियोक्रिस चावरा, तो जिनको हम फादर चावरा या सेंट चावरा के नाम से जानते हैं। तो आइए उनके द्वारा हम देखें कि उन्होंने हमारे लिए इंस्पिरेशन के लिए क्या क्या हमें बताते हैं। बहुत कुछ बताया है उन्होंने, लेकिन कुछ बातों पर हम ध्यान देते हैं। Let not the insult and quarrel of others be a cause of hatred and enmity. देखिए, तो इंस्पिरेशन सिर्फ सक्सेस पाने के लिए ही नहीं है, एक पीसफुल लाइफ, एक फ्रूटफुल लाइफ जीने के लिए भी होता है। Yes, then only you will have a complete life. So if you want a peaceful and a happy life, a fruitful life, a life that is pleasing to God and that is pleasant to people, then we have to inspire ourselves to lead such a life. So let not the insult and quarrels of others be a cause of hatred and enmity. तो अगर दूसरे हमारे साथ लड़ते हैं, या उन्होंने कभी भी हमको इंसल्ट किया है ना, तो उस समय इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखने के कारण फिर हमारा भी जीवन एक नेगेटिव लाइफ बन जाएगा, और उसके कारण हमारे हृदय में लोगों के लिए नफरत होगी, और हम दुश्मनी बहुत जल्दी रखेंगे लोगों के साथ। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम सम्मान रखना चाहिए। तो let not the insult and quarrels of others be a cause of hatred and enmity. Since you belong to God, you have to give yourselves back to God. क्योंकि आप ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए। Saint Chavra said, "Do not show off your wealth and power.
He who shows off all that he has is really of a lower standard. तो ये भी एक इंस्पिरेशन है कि आप जरूर लाइफ में सक्सेसफुल बनिए, अमीर बनिए, ज्ञानवान बनिए, लेकिन उसका प्रदर्शन मत कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए जीवन की खुशियों और अच्छाई के लिए, संसार की अच्छाई के लिए कीजिए उसका इस्तेमाल, लेकिन उसका प्रदर्शन मत कीजिए। क्योंकि जब हम अपने धन का, अपने वैभव का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तब हम दिखाते हैं कि हमारा जीवन का जो स्तर है वो गिर जाता है। Then we don't want to have such a life. We want a life that is considered to be a great life. That means, so all the gifts that God has given you is not to show off, is to be used for the goodness and for the betterment of people. Let there be no day in your life in which you did no good to others. तो सेंट चावरा हमसे कहते हैं, अपने दिन, अपने हर एक दिन में, जीवन के हर एक दिन में कोई भी ऐसा दिन ना बीते जब आपने दूसरों के लिए कुछ अच्छा ना किया हो। और ये खूबसूरत इंस्पिरेशन है, क्योंकि इसके द्वारा वी कैन बिकम अ ग्रेट पर्सन, we can become a source of inspiration for ourselves. When we look back at ourselves and we think of ourselves, we will have respect for ourselves. कि कोशिश करना है कि अपने दिन के हर एक, अपने जीवन के हर एक दिन में आप कोई ना कोई अच्छा कार्य करें, दूसरों के लिए करें। स्वयं के लिए तो जो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होगा, लेकिन जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सेवा होगा और उसमें ईश्वर की प्रसन्नता भी होगी। ठीक है, सो लेट देयर बी नो डे इन योर लाइफ इन विच यू डिड नो गुड टू अदर्स। हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचिए। द हम्बल मैन इज द ग्रेटेस्ट अमंग मेन। अटेन पंक्चुअलिटी बाय मीन्स ऑफ अ रेगुलर टाइम टेबल। देखिए, जैसे लाइफ इज टाइम, सो यू हैव टू वैल्यू टाइम इन योर लाइफ, and in every time you have to value your life. So attain punctuality by means of a regular timetable. We should not miss this. सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए भी, अच्छी बातों को करने के लिए भी एक proper timetable रखिए. Fill your life with the inspiration of having a timetable. Fill your life to be a great person with humbleness. Humbleness. The humbleness will help you to achieve greatness. Yes. कहते हैं जिन पेड़ों पे बहुत फल होते हैं वो उनकी डालें झुकी हुई होती हैं, तो क्योंकि उनमें बहुत फल हैं, वो फलदायी पेड़ हैं, इसलिए उनकी डालें थोड़ी झुक जाती हैं। तो हम्बल मैन और अ हम्बल पर्सन will be considered as a great person. So please have the inspiration of being humble in your life. Children who have love of God and fear of God will love and respect their parents. तो हमारा वॉल्यूम 2 जो था वो पेरेंट्स के प्रति हमने अपने प्यार को महसूस किया था वॉल्यूम 2 में। आप रिमेम्बर करते हैं जिन्होंने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है आप डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वॉल्यूम 2 के बिल्डिंग ब्रिक्स को ज़रूर देख सकते हैं, जहां हम लोगों ने अपने प्यार को अपने पेरेंट्स के लिए व्यक्त किया था और महसूस किया था। तो फादर चावरा हमसे कहते हैं कि चिल्ड्रन हु हैव लव ऑफ गॉड एंड फियर ऑफ गॉड, वो बच्चे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वे अपने माता पिता से ज़रूर प्यार करेंगे और उनका आदर करेंगे। तो वी शुड हैव द इंस्पिरेशन ऑफ हैविंग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर एनीबडी हु वी मीट इन आवर लाइफ। We should have the inspiration in our heart that whenever we recall ourselves or introspect with ourselves, we should be having a very firm idea that yes, I am such a person. मैं अपने परमात्मा से प्यार करता हूँ, मैं अपने परमात्मा की बताए राहों पे चलता हूँ, मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ और उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। आदर और प्रेम, दूसरों के लिए आदर और प्रेम रखना हम बचपन से सीखते हैं जब हम अपने माता पिता को आदर और प्रेम देते हैं। तो
It is a very important inspiration that we should have in our heart to love and respect others. When diseases, trials, and difficulties face you, resign yourself to the will of God. अब आप देख रहे हैं कि वो सभी पर्सनालिटीज जिनके बारे में हमने अभी तक देखा है इस टॉक में, वे सभी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन खुद के लिए और सारे संसार के लिए बने, और सभी एक ही बात कहते हैं कि अपने बुरे वक्त में, अपने कमज़ोर वक्त में, अपनी कमज़ोरियों में, अपनी हार में परमात्मा को बुलाइए, परमात्मा का वास महसूस कीजिए, परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दीजिए अपनी कमज़ोरियों को, अपने हार को। जब आप हार गए हों और जब आप फेल हो गए हों, उन्हें परमात्मा के चरणों पर समर्पित कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। परमात्मा का नाम लेके, विश्वास करके आगे बढ़ाइए, वहाँ मत रुक जाइए। अपने हार को, अपनी कमज़ोरियों को, इन सबको पकड़ के वहाँ मत बैठ जाइए। Don't make these a hurdle in your life. Your weakness, your losses, don't make them a hurdle of your life that you cannot move forward. You cannot do anything good. But be filled with the inspiration that when I will lose in life. When I will face failure, I will definitely face failures also in life. When I will have certain factors that will limit me, like difficulties and diseases and trials, I will surrender them to God. मैं इन्हें परमात्मा को समर्पित करूंगा और परमात्मा वो राह निकालेगा जो कोई सोच नहीं सकता, जो मेरा मस्तिष्क से सोच नहीं सकता। तो इन कठिन परिस्थितियों से परमात्मा मुझे निकालेगा, मेरी कमजोरियों में परमात्मा आशीर्वाद देकर मुझे शक्ति देगा। ठीक है, तो और इस इंस्पिरेशन को अपने हृदय में हमें संजो के रखना चाहिए that yes, I will fail. Yes, there will be moments when I will lose. Yes, there will be moments when my weakness will be put at test. But yes, I have already surrendered them to my Lord. मैंने इन्हें अपने परमात्मा को समर्पित कर दिया है। उनके सक्षम हाथों में मैंने अपनी असक्षमता को दे दी है। परमात्मा मेरी सक्षमता, मेरे जीवन को सक्षमता से भरेगा, अपनी शक्ति से भरेगा, अपने हौसला से भरेगा, अपने आशीर्वाद से भरेगा, और मेरा जीवन इन कमजोरियों के साथ, इन फेलियर्स के साथ, इन डिफिकल्टीज के साथ भी सक्सेस पाएगा, एक ग्रेट लाइफ बन जाएगी। Children, you are God's investment in the hands of your parents. So this is a very beautiful, source of inspiration, not only for the children but for the parents also. तो पेरेंट्स भगवान का निवेश समझिए बच्चों को। बच्चे, आप भगवान का निवेश है अपने पेरेंट्स के हाथ में। सो पेरेंट्स, गॉड हैज गिवन यू अ चाइल्ड, गॉड हैज गिवन यू पेरेंट्स, एंड माय डियर फैमिलीज, गॉड हैज loved you by giving each other to all of you. एक दूसरे, आपके फैमिली के एक मेंबर जो आपको भगवान ने दिया है, वो भगवान की तरफ से उनका प्रेम है जो उन्होंने आपको दिया है। उस भगवान के प्रेम को संजो के रखिए अपने रिश्तों में। So children, you are God's investment in the hand of your parents. So जब हम ये भी एक ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन है जिसके द्वारा हम अपने रिश्तों को भगवान की एक सौगात समझेंगे और उन रिश्तों को हम वैसे ही संभाल के रखेंगे, उनकी कदर करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं हमारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए है, हमें एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए हमारी लाइफ में गॉड का एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फादर चावरा ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। जनरली इनकी बहुत सारी बातें कई लैंग्वेजेस में हैं, मैक्सिमम मलयालम में लिखा है। इनकी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और टीचिंग्स हैं, उसका जो एक उसको संजो के रखा गया है, उसको चावरुल में कहा जाता है। सो डियर चिल्ड्रन, यू आर बाउंड बिफोर गॉड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड नेवर टू कॉज देम एनी ग्रीफ। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड ही हैज, फादर चावरा ने बहुत सारे टीचिंग्स दिए हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को। और जब भी आपको मौका मिले, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कार्मल ग्रुप,
तो आप ज़रूर फादर चावरा के बारे में पढ़ें। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि फादर चावरा ने अपने चावरोल में कितनी खूबसूरत गाइडेंस दी हैं जो हमारे इंस्पिरेशन को और स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बना सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। जिस दिन आपके हृदय में ये अंकित हो जाएगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। इफ दिस इज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, मैं एक इंसान हूँ, हो सकता है मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं जिस परमात्मा का नाम लेके चलता हूँ उस परमात्मा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, लिखा हुआ है, बाइबल में अंकित है दोनों जगह, विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। विथ गॉड all things are possible, so nothing is impossible for God. Have the inspiration that yes, God, I trust in you, my trust in you, that everything that is impossible for me can be made possible by you. Yes, so when you invite God in your life and you start living with this inspiration that nothing is impossible for God, you are blessed with a great strength and enthusiasm to continue with your life, with your good works that you're doing, no matter what hardships you're facing, no matter how impossible the world makes you think it is, but it will not be, because everything is possible for God. God is able to do far more abundantly than all that we ask or think. हम जो सोचते हैं और हम जो मांगते हैं, परमात्मा उससे बहुत 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 ज़्यादा करने के लिए सक्षम है। So God is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like the eagles. So you should always have your hope in God. Your strength will be renewed and you will be like the eagle जो कि आसमान में उड़ता है ना, इतनी ऊंचाइयों को पाता है। तो डेफिनेटली आपको अपने स्ट्रेंथ को रिन्यू करना है, तो आपको अपनी आशा परमात्मा में रखनी होगी। इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू हैव योर होप इन गॉड। इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू कंसिडर, मैं जो मांग रहा हूँ, वो जो मैं सोच रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा सक्षम मेरा परमात्मा है। हो सकता है मैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से मांग रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा मेरी बुद्धि से बहुत 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 ज़्यादा ग्रेट है, और he can do and see and help me with much more than what I can even perceive or think about. This is also a great source of inspiration in life that we should have. When you have these thoughts in your mind, you become a source of inspiration for you yourself. आप खुद को जब आईने में देखेंगे तो आप कहेंगे, यस, मैं जिस प्रतिबिंब को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मीन्स आई माई सेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर माई सेल्फ। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये एक 4 साल की बच्ची की तस्वीर है जिसका रेलवे ट्रैक पर एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में इन्होंने अपने दोनों हाथ और एक पैर की सारे जो अंगूठे और वो उंगलियां होती हैं वो सब कट गई। शी लॉस्ट बोथ her hands and the front part of one feet. At the age of 4, 4 साल की उम्र में उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। And I was told by my father, this case was actually brought to my notice by my father. जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि आई एम वर्किंग ऑन इंस्पिरेशन, तो उन्होंने बताया कि हमारे फैमिली में भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये मेरे फादर ने बताया कि ये जो व्यक्ति हैं, शी इज़ द डॉटर ऑफ हिज कज़न, उनकी बड़ी मौसी के बेटे की डॉटर। ओके, सो वी कैन ऑलवेज लुक अप टू फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो फॉर इंस्पिरेशन। हमारे फैमिली में इतने सारे
खूबसूरत लोग हैं, अच्छे ब्यूटीफुल लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करने में लगे रहते हैं। अपने जीवन को उन्होंने इंस्पिरेशन का सोर्स बनाया हुआ है। तो वी कैन ऑलवेज लुक एट पीपल ऑल्सो, हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार हमारे फैमिली में ही इंस्पिरेशन बिल्डर्स होते हैं। तो वन सच ग्रेट पर्सनैलिटी आई केम टू नो, इनका नाम कामिनी है। दिस इज मिसेस कामिनी श्रीवास्तव। यू कैन सी दैट एक पैर जिसमें अंगूठे और वो उंगलियां हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रही हैं, लैपटॉप का यूज कर रही हैं, है ना। 4 साल की उम्र में होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई की और 4 साल की उम्र में एक्सीडेंट ने उनको रोका नहीं। लोग सोचेंगे कि अरे दोनों हाथ और एक पैर कटने से शायद अब इनका जीवन आगे बढ़ नहीं पाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ये अपने जीवन में शायद कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन इन्होंने शिक्षा के जो ज्ञान का जो आशीर्वाद है उसे प्राप्त किया। इन्होंने शिक्षा को अर्जित किया, ये पढ़ाई करती रही है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और मिसेस कामिनी श्रीवास्तव, द करेजियस गर्ल हु रिफ्यूजेस टू गिव अप, इज करेंटली वर्किंग एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और अपने आप को एक गवर्नमेंट का ऑफिसर बनाया है। आप समझ सकते हैं इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन उन सब परेशानियों पर उन्होंने अपने हौसले से विजय पाया। शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हरसेल्फ, यस, एंड नाउ शी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। हताश मत होइए, परमात्मा का आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए, हौसलामंद बनिए, एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ। यू विल अचीव ग्रेटनेस। इंस्पिरेशन फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू आर डिटरमिन्ड। Nothing is impossible if you are determined. She learned to write using her feet. वो एक ही पैर जिसमें अंगूठा और ये उंगलियां हैं, क्योंकि दूसरे पैर के अंगूठे उंगली कट चुके हैं और दोनों हाथ तो है ही नहीं इनके। तो वो एक ही पैर से इन्होंने लिखना सीखा। And completed her formal education. She also holds a master's degree. And इनके जो विचारों को ये लिखती थी और वो विचार पब्लिश होते थे। इतना अच्छा ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा इन्होंने संवारा, और इनकी जो लेखन को ये प्रकाशित होता था इनका लेखन। इनके लेखन को पढ़कर एक व्यक्ति को इनका व्यक्तित्व बहुत भाया और उन्होंने उनसे मैरिज भी की। कामिनी की शादी 1997 में आजमगढ़ के स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव के साथ हुई। शी इज मैरिड एंड शी इज ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, सन ऑल्सो। अपने पति के सुझाव पर कामिनी ने अपनी कविता लेखन के शौक को किताब का रूप दिया और खिलते फूल महकता आंगन नाम की किताब लिखी। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और सुनने में आता है इन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं मिसेस इंदिरा गांधी, उनकी जीवनी इन्होंने कविता के रूप में लिखी है। और ऐसी कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे इनाम और सम्मान मिले हैं इन्हें, और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में लोग इन्हें जानते हैं जिनसे मिलकर ही लोग इंस्पिरेशन पाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को एजुकेशन के द्वारा संवारा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो पढ़ाई से बचने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि पढ़ाई को अपनी शक्ति बना लीजिए, ज्ञान के अर्जन को अपनी शक्ति बना लीजिए, हौसलामंद बन जाइए, पढ़ते रहिए, कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन अचीविंग इन लाइफ। बी योर ओन इंस्पिरेशन, यस, बी योर ओन इंस्पिरेशन। कितनी खूबसूरत एक एक्सपीरियंस मतलब एग्जाम्पल है। जो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर, मेरे पापा, जिन्होंने मुझे ये बताया, इनके बारे में मुझे बताया, और फिर मैंने इंटरनेट पे उस पर देखा और मैंने पाया हाँ ऐसे एक व्यक्ति हैं और ये हमारे परिवार के ही हैं। तो
मैं शायद इनसे मिला नहीं, लेकिन मेरे फादर इनसे बचपन में मिले हैं, और यह हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं इस जज्बे को, और इस जज्बे को रखने वाले उन सभी हजारों लोग जो इस दुनिया में हैं, और उनसे हम सीखते हैं हाउ यू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स. You have the power within you to overcome every situation. It is all in your mind. If you can conceive it, you shall receive it. You have the power. आपके अंदर वो पावर है ना? It is all in your mind. ये आपके मन के अंदर है. अगर आप उस मन में अपने विश्वास कर सकते हैं, तो आप उस पावर को इस्तेमाल करके अचीव कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं. इसलिए अपने मन को इंस्पिरेशन से भरिए, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरिए, अपने आप को अपने लिए, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनाइए. देखिए, बिल्ड योर सेल्फ टू बी योर इंस्पिरेशन. यही इस पूरे टॉक का कहना चाहिए एम है, ऑब्जेक्टिव ये है. बी योर ओन इंस्पिरेशन. बिल्ड. जब आप अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनाएंगे अपने लिए, तो आप देखेंगे आप खुद भी एक अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे, आप खुद ही एक स्ट्रांग व्यक्ति बन जाएंगे, आप खुद ही एक पीसफुल व्यक्ति बन जाएंगे, आप खुद ही एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करेगा. आप खुद ही ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जो परमात्मा के प्यार को महसूस करता है और उनकी शक्ति में भरोसा रखता है. सो बिल्ड योर सेल्फ टू बी योर इंस्पिरेशन. For where your treasure is, there your heart will also be. तो आपका हृदय बस वहीं रहेगा जहां आपको लगता है आपका धन है. अगर आपको लगता है आपका धन जो है वो किसी अलमारी में है, तो आपका मन उस अलमारी की तरफ ही रहेगा. अगर आपको लगता है कि आपका धन अच्छे विचारों में है, अच्छे कामों में है, अच्छे कामों में है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में है, दूसरों का मददगार बनने में है, ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करने का, उसके प्रेम को महसूस करने का, उसकी शांति पाने का और उससे शक्ति पाकर दूसरों की मदद करने का है, तो आपका हृदय भी वहीं होगा. For where your treasure is, there your heart will be. I can do everything through God who gives me strength. ये एक इंस्पिरेशन जरूर अपने जीवन में रखिए. I can do everything थ्रू हिम. हिम मतलब गॉड, परमेश्वर के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है, मैं सब कर सकता हूं. हताश मत होइए अपने जीवन में, परमात्मा को अपनी शक्ति बनाइए, अपने विश्वास को परमात्मा में रखिए और मेक योर सेल्फ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर सेल्फ. गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, His love endures forever. तो अपने परमात्मा को हमेशा हर वक्त में हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमात्मा अच्छा है, ये मेरा विश्वास है, और उसका प्रेम हमेशा मेरे साथ है, मुझे संजो के रखता है. ये भी मेरा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. दिस मेक्स मी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, आशा है आपको ये टॉक जो प्रेरित करता है कि आप स्वयं के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए और दूसरों से इंस्पिरेशन लेते भी रहिए. लेकिन यस, keep on building in your life, being a source of inspiration. Build yourself to be a source of inspiration. I hope आपको ये टॉक अच्छा लगा और ये आपको इंस्पायर करता है कि आप एक इंस्पिरेशन बने. So may God bless you and may God bless your family. Thank you so much. Take care of yourselves.